आओ सब तो पहला उस पिता दी फतेह नूं बुलंद करिए। मना नो जोड़िए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जपजी साहिब दी लड़ीवार कथा दे विच 16वीं पौड़ी दी कथा चल रही सी। जो पहलियां पंक्तियां दी कथा हो चुकी सी। अज उस तो अगे प्रारंभ करांगे। जिहड़ियां पहला 15 पौड़ियां दी कथा हो चुकी है। जिस इंसान ने उन्हां 15 पौड़ियां नूं कमा लिया है अपने जीवन दे अगे विच, उसका गुरु साहब ने वर्णन किया सी कि वह पंच बन जाता है, वह प्रधान बन जाता है। इस दुनिया दे विच उसका जस हुंदा है ते उस परलोक दे विच भी उसका जस हुंदा है। उस परम पिता दी बाणी दे विच गुरु साहिब जी ने जो विचार दिते हन, आओ पहला पंक्तियां सरवण करिए। जे को बुझै होवै सचियार, तब लै उपर केता पार। तरती होर परै होर होर, तिसते पार तलै कवन जोर। जी अजात रंगा के नाम, सबना लिखिया उड़ी कलाम। एह लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाल हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भलीकार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहिब जी ने ये पौड़ी जागे हुए मनुख लई रचना की है इसदी कि जो इंसान अपने जीवन दे विच जाग गया है, उसकी स्थिति की है। आम दुनिया दे विच दो दृष्टियां प्रचलित हन, चरम दृष्टि ते दिव्य दृष्टि। भाई गुरदास जी ने चरम दृष्टि की गल की है, गुरु अमरदास महाराज जी ने दिव्य दृष्टि की गल की है। चरम दृष्टि की है इंसान का जीवन जो है वह चम तक ही सीमित रह जाना। साडा शरीर ये चम दा बनिया होया है, असीं सारे शरीरधारी हाँ। जिंदगी नूं ये समझ लेना कि जिंदगी दे विच खाना पीना पहनना धन इकट्ठा करना जां ये जो दुनिया दिसदी है, ये संसार ही सब कुछ है। धर्म की दुनिया दे विच असीं धर्म दे वल्लों अखां मीट लैंदे हां। असीं कई बारी कह देते हां कि अग्गा किसने देखा है, जां इत्थे ही सब कुछ है, खाओ पियो ते मौज करो। साडी जिंदगी इत्थे तक ही जो सीमित रह जाती है। पर जो भगत जन, जो पुरख उस पिता की गल करते हैं, जिन्हां दी दिव्य दृष्टि की अख खुल गई है, साडे आम जीवन दे विच ते वो गल है कि जिस तरह कुछ कबूतर सन, उन्होंने एक बिल्ली खा जाया करती सी। कबूतर इकट्ठे होए, उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज करना चाहिए है।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਬਾਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਉਸ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਿਆ
ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋਈ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੀਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੇਹੀ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਵਿਲ ਲਾਵਣ ਜੀਨਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪ ਸੰਚੋਟਾਂ ਖਾਸੇ ਕੌਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਜਗ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
सेवा जो है, सेवा दा फल जो है वो सिमरन दे नाल है। सिमरन जो है वही उत्थे चलदा है। सानू उसे नाल जोड़न लई ही गुरु साहब ने ये जो फरमान हन वो कीते हन। इसे तरह ही धर्मराज की गल भी चलती है कि वो देख रहा है। आओ हुण पंक्तियां नाल जुड़िए। गुरु साहब जी फरमाउंदे हन, जे को बुझे होवे सचियार। पिछले हफ्ते जो कथा हुई सी उस विच विचार हुई सी कि बहुत सारे लोग मनते हैं कि धौला बैल जो है उसने इस धरती नूं चुकिया होया है। गुरु साहब कहते फरमाउंदे हैं, जे को बुझे होवे सचियार। जे कोई इस तरह का विचार करता है, कोई इस तरह का ज्ञानवान ये विचार करता है कि जिहड़ी धरती है वो धौले बल्द ने चुकी हुई है। गुरु साहब जो धौला बल्द धौल किस नूं कहंदे हन, वो गुरु की मर्यादा नूं कहंदे हन। पर उन्होंने कहा कि जे दुनिया के सच नूं मन लईए कि धौले बल्द ने वो जिहड़ी धरती है वो चुकी हुई है, उसनूं ये भी विचार करना पवेगा धौले उपर कीता भार, कि उस बलद दे उत्ते कितना भार होवेगा, किन्ना भार जिहड़ा है वो धरती दा वो किन्ना चुक सकेगा। गुरु साहब जी अगे फरमान जो करते हैं, धरती होर पर है होर होर। हुण जे कोई इस तरह का सूझवान जो ये गल कहनी चाहे वो जे ये मन लेंदा है कि धौले बल्द ने जो है वो धरती चुकी हुई है, ते गुरु साहब कहते हैं धरतियां ते अनेका हन। फिर जो उसने ये धरती चुकी हुई है तो वो किदे ते खड़ा है। जे असीं फिर मान लीए कि वो दूसरी धरती ते खड़ा है, उसके थले कौन है। किते ना किते जाके ते सानू ये मनना पवेगा ना कि कुछ भी नहीं है। किते ना किते जाके ते चीज मननी पवेगी कि किस दे आसरे खड़ी है, उसके थले ते कुछ भी नहीं है। ते गुरु साहब कहते हैं कि जो अनेका धरतियां जे इस धरती ते मन लईए आत्मा के धौले बल्द ने चुकी हुई है। शुक्र भी ग्रह है, चंद्रमा है, कितने ग्रह हन, कितने सितारे हन, कितने सियारे हन जो खड़े हन, उन्होंने किसने चुकिया होया है। गुरु साहब कहते एक उस परिपूर्ण परमात्मा की मर्यादा है जो धौल है। धौल का मतलब धौला बलद नहीं है, धौल का मतलब है उस गुरु की मर्यादा। उस गुरु की मर्यादा दे विच जो बनिया होया है उसते ही आसरे ये धरतियां जिन्नियां हन, ये सितारे जो हन वो सब खड़े हन। इसलिए इस गल दे उत्ते गुरु साहब ने जोर दिता है कि ये सब कुछ है जो है उस परिपूर्ण परमात्मा की मर्यादा के अनुसार चल रहा है। तिसते भार तले कमन जोर, उसका असीं किस तरह अंदाजा लगा सकेंगे कि कितना भार है। हुण ये जो सारियां ही चीजां खड़ियां हन, एक इंसान दा एक मनुख दा करना होवे ते असीं कर सकते हैं, उस दे विच कितनी शक्ति है उस दे पैमाने असीं ला सकांगे। पर ये जो सितारे ये जो ग्रह हन इन्हां दा असीं पैमाना किस तरह ला सकते हाँ, जो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने क्या है, बिन थम्मा गगन रहाया, कि इन्हां चीजां दे थल्ले कोई थम्मियां ते नहीं दित्तियां होईयां। ये सिर्फ उस परिपूर्ण दी परमात्मा की मर्यादा है, उसकी शक्ति है। जीव जंत रंगा के ना। हुण परिपूर्ण परमात्मा ने जो पैदा किया है, कितने तरह के जी जंत हन, कितने तरह के उन्हां दे रंग हन, कितने तरह दियां उन्हां दियां जातां हन, कितने तरह के उन्हां दे नाम हन। जे कोई इस चीज नूं खोज करने की कोशिश करे नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर एक चीज जो है वो अथाह है, वो शुमार है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जितने भी जी हन, मोर दी अपनी सुंदरता है, हंस दी अपनी सुंदरता है, मनुखा दी अपनी सुंदरता है, फुल्लां दी अपनी सुंदरता है, सूरज दी, चंद्रमा दी, सारियां दी इन्हां दी अपनी अपनी सुंदरता है। वो परिपूर्ण परमात्मा की एक छोटी जी एक मर्यादा जो बनाई उहदे विच सारा कुछ चल रहा है। इतने जीव इत्थे ही गुरु साहब लिखते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज फुने शब्द दे विच फरमाउंदे हैं, हाथ कलम अगम लिखावती। हुण उस परिपूर्ण परमात्मा ने की कीता, ये जीवां नूं सिर्फ पैदा ही नहीं कीता, कितनियां जातां दे, कितनियां नस्लां दे हन, कितने रंगां दे हन। उन्हां दे मस्तक दे उत्ते एक अगम्मी कलम दे नाल उन्हां दे लेख लिख दिते हन। उन्हां दे लेख की हन, उन्हां दे लेख हन उन्हां दा सुभाव।
हर एक दा सुभाव अलग है। शेर दा सुभाव अलग है, गऊ दा सुभाव अलग है, सूअर दा सुभाव अलग है। सूअर दी जिन्नी मर्जी कोशिश कर लईए उसनूं नवा धवा लईए, वो फिर भी जाके चिक्कड़ दे विच ही बैठेगा। ये उहदा कर्म है। ये उस परिपूर्ण परमात्मा ने उसके मस्तक ते लिख के भेजा है। शेर है, मर जाएगा पर घाह नहीं खाएगा, ये उसका सुभाव है। ये पिता ने अगमी कलम दे नाल उसके मस्तक ते उसके कर्म लिख दिते हैं। गऊ है, मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। ये चीज जो है परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी उस अगमी कलम दे नाल हर एक दे मस्तक दे उत्ते जो है वो लिख दिता है। जी जंत रंगा के नाम सबना लिखिया बूढ़ी कलाम जिहड़ी वो अगमी कलम जिहड़ी है उस दे नाल हर एक दे मस्तक ते लिख दिता है। ये लेखा लिख जाना कोई, जे कोई इसका लेखा करना चाहे, इसका कोई लिखना चाहे इस चीज नूं कि उस परिपूर्ण परमात्मा का कितना वड्डा जो है वो पसारा है। लेखा लिखिया केता होए, की लिखेगा वो, कितना क लिखेगा। वो तो जीवां दे जितना वो प्रकृति दे विच परमात्मा ने पैदा किया होया है उन्हां दा नाम ही नहीं लिख सकता, उन्हां दीयां जातां दा ही वर्णन नहीं कर सकता। ते फिर उस तो अगे जो परिपूर्ण परमात्मा दे उन्हां दे कर्म लिखे हैं उन्हां नूं कौन लिख सकेगा। उसका पसारा जो है वो अनंत है। गुरु साहब कहते हैं जे ये लेखा कोई जानना चाहे, कोई लिखना चाहे, ये लेखा लिखिया कीता होए, कोई नहीं लिख सकता उस लेखे नूं। उस परिपूर्ण परमात्मा नूं सद नमस्कार करना ही सानू शोभदा है। गुरु साहब फरमाउंदे हन कीता ताण सवालियो रूप। हुण किन्ना ताण, किन्नी शक्ति है उस परमात्मा विच, सवालियो रूप, किन्नी सुंदरता है। उसने एक थोड़ी जी शक्ति दे नाल इस संसार ब्रह्मंड बना दिता। किन्नी सुंदरता है इस दे विच। कौन लिखेगा उस सुंदरता नूं, कौन उस सुंदरता नूं जान सकता है। उस दियां पैदा कीतियां हुई चीजां केता ताण, ताण मतलब हुंदा है शक्ति। हुण उस दियां पैदा कीतियां हुई शक्तियां अग्नि है, पवन है, पानी है। हुण जे अग जेड़ी है वो थोड़ा जिहा ही खतरनाक रूप धारण कर लवे ते सब कुछ साड़ के सुआह कर दिंदी है। जिहड़ी हवा है अगर वो तूफानी रूप तैयार कर लवे, अख्तियार कर लवे ते वो दरख्तां नूं जड़ां तो पुट के रख दिंदी है। पवन जिहड़ी है उसके आसरे ते जिहड़ियां समुंदर दीयां लहरां हन वो आसमान नूं छू जांदियां हन। हर एक दी किस दी शक्ति नूं तुसीं कहोगे उस दियां बनाईयां हुईयां चीज़ां दी शक्ति दा अंदाजा नहीं ला सकदे। उस परिपूर्ण परमात्मा दा अंदाजा किस तरह ला सकदे हो कि वो कितना क वड्डा है। उसदे ना असीं उसदी शक्ति दा, ना उसदे जो रूप, उसदी सुंदरता है, उसदा अंदाजा ला सकते हां। हुण इंसान जो है वो आप ही लेंदा लेंदा मुक जाता है, आप ही देखदा देखदा इन्हां चीज़ां नूं खत्म हो जाता है, पर उसका अंदाजा कोई नहीं ला सकता। कीती दात जाने कौन कूत। हुण उस परिपूर्ण परमात्मा ने किन्नियां दातां दित्तियां होईयां हन। अरबां खरबां सालां तो सारे ही जीव दाता प्राप्त कर रहे हैं। दाता भी उसी तरह समर्थ है और उस दियां दाता भी उसी तरह समर्थ हैं। ये वखरी गल है कि इंसान लैंदा लैंदा थक गया है। उसकी दात दे विच कमी नहीं आई, भोजन दे विच कमी नहीं आई, साडे दंद ही जवाब दे गए हैं। उसकी सुंदरता दे विच, जगत की सुंदरता दे विच कोई कमी नहीं आई, साडियां अखां ही जवाब दे गईयां हैं। दुनिया दे विच नाद, दुनिया दे विच संगीत खत्म नहीं हो गया, सिर्फ साडे कन ही जवाब दे गए हैं। ये सारियां चीज़ां जो हैं बहुत सुंदर नज़ारे हैं दुनिया दे विच, पर इंसान दीयां लत्तां ही रह गईयां हैं उन्हां नज़ारियां नूं लैण दे लई, उत्थे जाण दे लई। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा दीयां जो दातां दित्तियां होईयां कौन उसका लेखा कर सकता है, कौन जाण सकता है कि वह किन्ना क वड्डा है, उस दीयां दातां किन्नियां क वड्डियां हन। कीता पसाओ एको कवाओ। गुरु साहिब ने फरमाउंदे हन कि उस परिपूर्ण परमात्मा ने सिर्फ एक बचन, एक शब्द अपने मुख तो उचरिया जिसके नाल ये सारी सृष्टि जिहड़ी है वो पैदा हो गई। इस्लाम धर्म दे बानी मुहम्मद साहब भी कहते हैं कि कुन शब्द तो जिहड़ा है वो ये जो ब्रह्मंड है ये पैदा होया है। उस परमात्मा ने कुन शब्द का नाम लिया तो ये सारी सृष्टि पैदा हो गई।
जैनियां दा होर मत है। वैदिक ऋषि जो कहते हैं उसने परमात्मा ने ओम किया तो ये जी सारा ब्रह्मंड है ये पैदा हो गया। सारे ही ऋषि मुनि, सारे ही वैदिक ऋषि जो हैं ਜਾਂ जितने भी पूर्ण संत आए हैं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਏ ਹਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ कि वो परिपूर्ण परमात्मा दे एक कवाव तो एक शब्द तो जो है वो ये सारा ब्रह्मंड पैदा होया है। गुरु साहब जी कहते हैं कि उस पिता ने एक ओंकार उचरिया ते उस तो सारी जड़ी है सृष्टि है वो पैदा हो गई। तिसते होए लख दरिया, उसते एक कवाव तो लखा ही दरिया चल पै। जीवां दे दरिया, मनुखां दे दरिया, कितना है सारा कुछ जो पसारा है उसके एक कवाव दे उत्तों ही पैदा हो गया। उसका असीं अंदाजा नहीं ला सकते। धरती ही है, हुण असीं किसी तलाब दे विच एक छोटी जी मिट्टी दी डली सिੱਟੀਏ ਉਹ खुर जाती है ते जे असीं अंदाजा लगाइए इस धरती दे थल्ले ते सारा पानी है, ये किस दी शक्ति ते खड़ी है? ये उसी परमात्मा दी बनाई हुई मर्यादा ते खड़ी है। गुरु साहब जी फरमाते कुदरत कवन कहाँ विचार, उस कुदरत दे बारे कौन विचार कर सकता है? हुण एक कोई फर्म है उसने एक गड्डी तैयार कर दी, हुण अगर दूसरी गड्डी तैयार करने लगेगा तो उसको दोबारा सारा वो प्रोजेक्ट तैयार करना पवेगा, तां वो दूसरी चीज पैदा कर सकता है, दूसरी गड्डी या कोई भी चीज पैदा कर सकता है। पर वो परिपूर्ण परमात्मा की सृष्टि देखो, उसने एक बारी पैदा कर दी और चल रही है। मनुख तो मनुख पैदा हो रहा, सप तो सप पैदा हो रहा, जो जीव है उसकी गां तो गां जो है वो लड़ीवार जो वो चीज है वो चल रही है। ऐसा कोई दुनिया दे विच नहीं है। साइंसदान और भगत दे विच फर्क की है? साइंसदान जो है वो उस बनाई हुई परमात्मा की चीज की खोज करता है। उसने चंद्रमा नूं लभ्या, होर ग्रह नूं लभ्या, सिर्फ उन्हें जो चीज बनाई है उसकी खोज करता है साइंसदान जो है। भगत जो है वो उसकी खोज करता है जिसने वो बनाई है। वो उस परिपूर्ण परमात्मा की खोज करता है, वो उसनूं लभदा है। उसनूं ही देख के असीं कह दिंदे हां, उसकी कुदरत के नज़ारियां नूं देख के कह दिंदे हां कि वाह परमात्मा तू कितना क वड्डा होवेगा, तेरा कितना क पसारा होवेगा। उत्थे ऐसी कह देंगे है ना कि परमात्मा जो तू कीता है वो सब सही है। असी उसदे समर्थ नहीं हाँ कि असी उसकी कोई भी व्याख्या कर सकीए। वारिया ना जावा एक बार, मेरे विच ते इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं एक बार तेरे तो कुर्बान जा सका, एक बार तेरे तो वारिया जा सका। ते मैं तेरिया शक्तियां अंदाजा, मैं तेरा की अंदाजा लगा सकता है? मेरे वस दी ये कोई गल नहीं है कि मैं तेरी किसी चीज का, इस बनाई हुई चीज का कोई वर्णन कर सका। इत्थे आके अखीर ते जदों आदमी पहुंच जाता है उस कुदरत का किसी भी पासे का कोई पता नहीं लगता, उस परमात्मा के आकार का कोई पता नहीं लगता कि वो कितना क वड्डा, उसने की पैदा किया है, की कुछ है, साडी समझ तो बाहर हो जाता है। फिर उत्थे आके गुरु साहब जी ने कहा कि इंसान ही जो तुद भाव है साई भलीकार, कि यह परिपूर्ण परमात्मा जो भी तू इस दुनिया के उत्ते पैदा किया है वो बहुत भला है, वो तेरी एक बहुत भली कार है, सानू स्वीकार है। ये परमात्मा ने दाढ़े वाला स्वरूप पैदा किया, सानू पर परवान है। हर एक इंसान, हर एक जीव, हर एक पक्षी जो उसने बनाया है उहदे विचों आप वस गया है। परमात्मा की इको एक अलग निशानी है दुनिया तो कि जो बनाने चीज़ां बनाने वाले हैं दुनिया दे चीज़ बना देंदे हैं, चीज़ किसी दूसरे दे घर दे विच पई है, बनाने वाला अलग हो गया। लेकिन परिपूर्ण परमात्मा जो चीज़ बनाउंदा है उसदे विच आप बैठदा है। जो भी उसने चीज़ इस दुनिया ते तैयार कीती, एक कीड़ा है उहदे विच भी वो बैठा, एक हाथी है उहदे विच भी बैठा, वो उसनूं तैयार करके आप उहदे विच बह गया। यही उस पिता की खासियत है, जो तुद भाव है साई भलीकार। ए परिपूर्ण परमात्मा तो जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी इस संसार ते पैदा किया है, जो कुछ सानू दिता है, जो कुछ सानू तू दे रहा है वो तेरी भलीकार है। तू जो कुछ भी करता है वो भला करता है, वो सत है, उन्होंने कोई भी रोक नहीं सकता ਜਾਂ उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। इन्नी किसी की समर्था ही नहीं है। जिथे गुरु नानक साहब कह देन
ਉਹ ਤੇ ਆਪ परिपूर्ण परमात्मा सन, पर उन्होंने जो सानू संबोधन किया, जो तुद भावै साई भली कार कह परिपूर्ण परमात्मा, जो तू बना दिता है वो भला है, वो भला है। गुरु दी बाणी, गुरु दा प्यार, पाठ करना अलग चीज है, पर प्यार नाल पाठ करना अलग चीज है। उस पिता दी कोई भी चीज करनी है, चाहे वाहिगुरु भी कहना है, हिरदे तो कहो, चाहे 100 बार कहने की बजाय एक बार कहो, पर वो हिरदे तो कहो। उस प्यार दे नाल ही परमात्मा ने मिलना है। उन्हें ये नहीं देखना कि असी किन्ने पाठ कीते हैं, असी किन्ने बारी वाहिगुरु क्या है। उसने तो ये देखना है कि मैनू उसने किन्ने प्यार नाल बुलाया है। असी किते दुनिया दे विच चले जाइए तो जे कोई सानू प्यार नाल बुला देवे, साडा किन्ना मन खुश हुंदा है। उस पिता ने ते सानू पैदा किया है, उसने ते सानू सब कुछ दिता है। असी उसका नाम लईए प्यार दे नाल, ते पसीज के साडा सारा ही अगला पिछला सब खत्म करके सानू बख्श लेंदा है। कई बारी असी कह देंदे हाँ कि परमात्मा कोलों मंग लेंदे हाँ। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे सन ते भीम चंद उन्हां कोल आया, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कोल उन्होंने प्रसादी हाथी मंगया, होर एक दो चीज़ां मंगियां, ते गुरु साहब कहन लगे, भीम चंद तेनू मेरा प्रसादी हाथी दिस गया, पर मैं नहीं दसिया। तेनू मेरियां चीज़ां दिस गईयां, पर मैं नहीं दसिया। जे किते तू मैनू मंग लैंदा, ये चीज़ां ते मेरे नाल ही आ जानियां सन। ये दाता उस पिता दा परछावां है। जिथे उस पिता ने आ जाना है, ये ते ऑटोमैटिकली नाल आ जानियां हन। असी परछावां ना मंगीए, असी उस गुरु नूं मंगीए, उस पिता नूं मंगीए, उस पिता नूं हिरदे विच वसाईए, ताकि असी अपना जीवन सवार सकीए, होरनां दा जीवन सवार सकीए। इतनियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। गुरबाणी पढ़दियां अगाध बोध है, बहुत उत्तम बाणी है, इस मत दे वस दी गल नहीं है। वो पिता जो दात बख्शदा है, उसनूं ही जो बुलाउंदा है, उसनूं ही अगे बोल सकदे हां। अगर कोई गलती हो गई होवे, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप साध संगत ज्ञान वाले हो, माफ कर सकते हो, माफ कर देना। उस पिता के अरदास करनी, इस हिरदे दे विच उस परमात्मा दा नाम रवे, आप दे हिरदे दे विच उस परमात्मा दा नाम रहे, आप दे संगतां दे चरणां दी धूड़ी इस मस्तक ते सुशोभित हुंदी रहे। इस चीज हमेशा गुरु दे और साध संगत दे अगे झुकिया रहे। इतनियां ही बेनतियां प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी।